Dear students, a warm welcome to my English YouTube channel English Arena. Wish you a warm welcome on this channel, and today we are going to discuss figures of speech based on sound. Sound पर आधारित कुछ literary devices, कुछ figures of speech, जिसमें हम आज तीन figure of speech discuss करेंगे: alliteration, onomatopoeia and pun. Alliteration, onomatopoeia and pun. सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं alliteration. Alliteration में repetition of similar sounds or letters or syllables at the beginning of two or more than two words in a phrase or in a sentence. किसी एक ही फ्रेज या सेंटेंस में बिगनिंग साउंड्स के रेपिटेशन को एलिट्रेशन कहते हैं. जैसे एग्जांपल्स में देखिए, द स्नेक स्लेप्ट अंडर अ स्प्रे. यहां पर स्नेक, एस, स्लेप्ट, स्प्रे. इन तीनों वर्ड्स के जो बिगनिंग साउंड्स हैं वो स साउंड है, एस लेटर है, इसलिए ये सेम साउंड एक इफेक्ट लाती हैं इस सेंटेंस को पढ़ने में. हमारे देश के प्रधानमंत्री भी एलिट्रेशन का बखूबी इस्तेमाल जानते हैं. उनके स्पीच में आप बार बार सुनेंगे, वो कहते हैं रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल. उनके स्पीच में एलिट्रेशन का बहुत अधिक समावेश होता है. एक बार मैंने सुना, वो कहते थे डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी and demand. Democracy, demography and demand are the strengths of India. इस प्रकार से वो बखूबी इस्तेमाल करते हैं एलिट्रेशन का. आइए एक और सेंटेंस से हम एलिट्रेशन सीखते हैं. A sweet smile, S spread across her face. A sweet smile spread across her face. जैसे ही उसने ये खुशखबरी सुनी, एक मधुर सी मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई. A sweet smile spread across her face. Next sentence, the weather was wet and windy last night. Repetition of W in this sentence is the use of alliteration in this sentence. The grass is growing green in my garden. Repetition of G sound or Z letter in this sentence is the use of alliteration. ये यूज किसी सेंटेंस में दो वर्ड में भी हो सकता है and more than two में भी हो सकता है. It is the use of alliteration. यहां पर आइए एक फ्रेज देखते हैं. गुड गवर्नेंस आपने सुना होगा. दिस इज ऑल्सो alliteration. Good governance. बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, ब साउंड की पुनरावृत्ति यहां हो रही है. ये है alliteration of B sound. B letter and back sound. This is known as alliteration. आइए इसको थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करें. कई बार केवल कॉन्सोनेंट ही नहीं, वॉवल साउंड्स का रिपीटिशन भी होता है. जब किसी सेंटेंस में कुछ वर्ड्स के बीच में या लास्ट में वॉवल साउंड्स रिपीट होती हो तो उसमें होगा रिपीटिशन ऑफ वॉवल साउंड्स, जिसे हम एजोनेंस कहेंगे. उसे हम एलिट्रेशन नहीं, एजोनेंस कहेंगे. और यदि कॉन्सोनेंट साउंड्स का रिपीटिशन हो तो उसे हम कॉन्सोनेंस कहेंगे. ये एक थोड़ा सा डेप्थ में जाकर हम इस चीज को देख सकते हैं. जैसे एजोनेंस का एक एग्जांपल लेते हैं. द फैट कैट हैड अ स्नैक. यहां पर ए साउंड की पुनरावृत्ति हो रही है इन द मिडल ऑफ द वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस. द फैट कैट हैड अ स्नैक. Like this. This is assonance. This is not alliteration or consonance. Next sentence. The sun rises high into the blue sky. Rises high sky. I sound.
यहां पर आई साउंड का रेपिटेशन है, जो कि एक प्रकार से एसोनेंस का एग्जांपल है आई। द सन राइजेस हाई इनटू द ब्लू स्काई, this is known as assonance. And here repetition of R, reduce, reuse, recycle, this is consonance or alliteration. You can find, you can use while composing a poem. You can use alliteration, assonance or consonance in the composition of poems, and you can also find out the usage of figures of speech, alliteration in the given stanza of the poem. कई बार 2 lines of a poem आपको दे दी जाती हैं and you have to find figures of speech used in the lines of the poem. If there is alliteration, this is very simple to identify, very easy to identify, and you can find it out and get full marks while identifying figures of speech used in the poem. Next figure of speech, onomatopoeia. Onomatopoeia एक Greek word है. It is a Greek word that means words that imitate sounds. कुछ ऐसे words जो किसी एनिमल, ह्यूमन बीइंग की किसी एक्टिविटी की साउंड से ही बने हैं, उन्हें हम ओनोमेटोपोइया कहते हैं। ये words having similar sound to the noise they create, वो जो भी और they describe, जो भी एनिमल जिस प्रकार की नॉइज निकालता है, उस नॉइज से रिलेट करता हुआ वर्ड अगर हम यूज करते हैं, दैट इज नोन एज ओनोमेटोपोइया। आइए कुछ साउंड्स और एनिमल्स से हम इस चीज को समझने की कोशिश करें। एनिमल्स, स्नेक, आपने ये सभी एनिमल्स और इनके साउंड्स सुने हैं, इसी से आप ओनोमेटोपोइया का कांसेप्ट समझ जाएंगे। A snake hisses, उसकी साउंड हिशिंग साउंड, अगर ये वर्ड उसकी साउंड से ही लिया गया है, यही ओनोमेटोपोइया है। कैट, कैट बिल्ली जिस प्रकार से बोलती है उसकी आवाज हम सब जानते हैं, म्याऊ म्याऊ। यहां पर ये म्यू साउंड इस कैट से ली गई है, यही इसका ओनोमेटोपोइया है। डक, क्वैक क्वैक क्वैक, ये इसकी साउंड से, इसके नॉइज से लिया गया है। इसी प्रकार से काऊ, मू, मू रंभाना जो है वो मू, इसको हम मू कहते हैं। ये जो साउंड्स हैं ये इन एनिमल्स से, की नॉइज से, की साउंड से रिलेटेड वर्ड्स हैं, इसीलिए इनके यूज को हम ओनोमेटोपोइया कहते हैं। जैसे ह्यूमंस के केस में कुछ वर्ड्स हैं, क्लैप, स्लैप, जैसी इसकी आवाज आती है उसी प्रकार के ये वर्ड्स हैं। कफ, खांसने की जो आवाज है कफ, छींकने की स्नीज, छी, और हिकअप, हिचकी, जिसे हम हिचकी कहते हैं, हिकअप, स्टैमर, तुतलाना, हकलाना, स्टैमरिंग। इस प्रकार से ये जितने भी वर्ड्स हैं इनका हम ओनोमेटोपोइक यूज कर सकते हैं। कुछ और वर्ड्स देखते हैं, जैसे नॉइज, कोई बिग नॉइज, कहीं बिग नॉइज होता है तो हम उसे क्रैश कहते हैं, क्रैश। अगर हम किसी बोर्ड पर इस प्रकार से मारते हैं तो हम उसे कहेंगे थंब, थंपिंग साउंड। हॉर्न, हॉर्न, हॉन्क, हॉर्न से की साउंड से हॉन्क की आवाज आती है। बी, बज, बजिंग साउंड ऑफ बीज। इस प्रकार से हम इन एनिमल्स, इंसेक्ट्स और ह्यूमन बीइंग्स के डिफरेंट नॉइजेस से जिन वर्ड्स को क्रिएट करते हैं, जिनका यूज करते हैं, उसी को हम ओनोमेटोपोइया कहते हैं। दिस इज ए फिगर ऑफ स्पीच बेस्ड ऑन साउंड्स। द बुल बिलॉड, बुल की साउंड को बिल्लो कहते हैं, बिलॉड। और द स्नेक हिस्ड, हिसिंग साउंड ऑफ स्नेक्स। इस प्रकार से आप कुछ और एग्जांपल्स ले सकते हैं। इन फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज अपने छोटे छोटे पॉइंट्स में कर सकते हैं और दिए गए
पोएम्स में, स्टैंजास में, पोइट्री में, पोएटिक लाइंस में ऑनोमेटोपोइया को फाइंड आउट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आइए अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच। स्टूडेंट्स, आइए हम दो और फिगर ऑफ स्पीच डिस्कस करते हैं, जिनमें से पहला है एनाफरा, एनाफरा, और दूसरा है एपिफ्रा। एनाफ्रा एंड एपिफ्रा। एपिफ्रा को हम एपिस्ट्रोफी के नाम से भी जानते हैं। आइए हम देखते हैं एक बेसिक डिफरेंस बिटवीन एनाफ्रा एंड एपिफ्रा। यूजुअली बहुत सारी हमारे स्पीच को, हमारी पोइट्री को, हमारी पोएम्स को ये एनरिच करते हैं एक साउंड इफेक्ट से, एक रेट्रिक इफेक्ट से। ये रेट्रिक इफेक्ट पैदा करने के लिए, एम्फेसिस के लिए, रीइंफोर्समेंट ऑफ आइडिया के लिए, और टू कन्वे आवर मीनिंग, टू कन्वे द मीनिंग इफेक्टिवली इट इज यूज्ड। अब हम देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनाफ्रा एंड एपिफ्रा। In case of anaphora and epiphra, repetition of one or more than one words is there. Repeat होते हैं बहुत सारे words, एक word या ज्यादा word, उनका repetition अगर कुछ phrases, clauses या sentences में होता है, या फिर poetry की lines में होता है, किसी stanza में होता है, तो वहां पर anaphora और epiphra का यूज किया जाता है। Repetition of a word or words at the beginning of phrases, clauses or sentences or lines of poem. अगर पोएम के लाइंस के शुरू में कोई रेपिटेशन हो किसी वर्ड या वर्ड्स का, तो उसे हम एनाफ्रा कहते हैं। परंतु if the repetition takes place at the conclusion or at the end of lines, at the end of phrases, clauses or sentences, then it is used, or it can be said that epiphra has been used there. This is the basic difference between anaphora and epiphra. Now let us take a few examples. My life is my purpose, my life is my goal, my life is my inspiration. Here, at the beginning of each line, the words my life have been repeated. These words have been repeated at the beginning of the lines. This is known as anaphora. हम इसको बहुत ही easily identify कर सकते हैं, और इसको हम अपने पोइट्री कंपोजिशन में यूज भी कर सकते हैं। इस प्रकार से अगर इसका यूज है तो आपके सिलेबस में भी बहुत सारी ऐसी पोएम्स हैं जिनमें एनाफ्रा का यूज किया गया है। द रोड नोट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, अगर आप उस पोएम को देखेंगे तो उस पोएम में फर्स्ट पैसेज में ही एंड शब्द 3 लाइंस के बिगिनिंग में रिपीट हुआ है। दिस इज एनाफ्रा। आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं हम एनाफ्रा के। रीच आउट योर हार्ट, reach out your words, reach out all the tendrils. Reach out your heart, reach out your words, reach out all the tendrils. Here, reach out, reach out, reach out has been repeated in all the 3 lines of the poem. This is known as anaphora. Now, let us discuss the use of epiphra or epistrophe. Epistrophe. For example, a word or words used at the end of phrases, clauses or sentences is known as epiphra or epistrophe. For example, आपने डेमोक्रेसी के बारे में ये लाइन सुनी होगी, of the people, for the people, by the people. People, people, people. Repetition of the word people at the end of each phrase. This is known as epistrophe or epiphora. आपके सिलेबस
और क्लास 10th में एक पोएम है जिसका नाम है अमांडा। उसके पहले जो 2 लाइन्स हैं, फर्स्ट स्टेंजा में ही एनाफ्रा का भी यूज है और एपिफ्रा का भी यूज है, दोनों को एक साथ यूज किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा। यहां पर शुरू में डोंट वर्ड का रेपिटेशन है एट द बिगिनिंग ऑफ दीज पोएटिक लाइन्स, एंड अमांडा अमांडा एट द एंड ऑफ दीज पोएटिक लाइन्स। यहां पर हम कहेंगे एनाफ्रा का यूज है और यहां पर हम कह सकते हैं एपिफ्रा का यूज है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन यूसेज ऑफ एनाफ्रा एंड एपिफ्रा in poetry or other sentences. This is a literary device to create a rhetoric effect. Now let us discuss a few more figures of speech. Figures of speech based on sound. इस series में now we are going to discuss pun, P-U-N. pun जो है ये एक फिगर ऑफ स्पीच है, अ प्ले अपॉन वर्ड्स, शब्दों के साथ खेलना। हम जब लैंग्वेज में शब्दों के साथ, वर्ड्स के साथ गेम खेलते हैं, उनके साथ खेलते हैं, उनका प्रयोग इस प्रकार से करते हैं कि उनके अलग अलग मीनिंग दिखाई दें या उनके अलग अलग एप्लीकेशन हो, अलग अलग यूज हो, लेकिन वर्ड सेम हो, उसे हम पन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम पन का यूज we use pun for more than one application of a word. To cause, it is used to cause or to create humor, admiration or surprise. हम अपनी लैंग्वेज में, अपनी स्किल में, अपने टेक्स्ट में ह्यूमर, एडमिरेशन और सरप्राइज जैसा इफेक्ट लाने के लिए पन का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसके एग्जाम्पल देखें, A teacher trains the minds. यहां पर a teacher trains the minds. टीचर ब्रेन्स को ट्रेनिंग देता है, ट्रेन करता है। A guard minds the trains. कितना सुंदर एग्जांपल है पन का। यहां पर ट्रेन्स एक वर्ब है, एक वर्ब के रूप में यूज किया गया है। यहां वाला ट्रेन नाउन के रूप में यूज किया गया है। यहां के माइंड्स नाउन के रूप में यूज किया गया है और ये वाला वर्ड वर्ब के रूप में यूज किया गया है। One word has different applications in the same sentence. This is known as pun. A teacher trains the minds. A guard minds the train. इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। I saw a saw that could not saw. ये V2 of see है। I saw a saw, ये नाउन है, ये वर्ब है और यहां पर ये फिर से एक वर्ब है, could not saw। यहां पर हम एक ही वर्ड को डिफरेंट यूजेस में यूज करते हैं, डिफरेंट मीनिंग्स में, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में यहां यूज किया जाता है, जिसे हम पन कहते हैं। एन एम्बेसडर, आइए हम सरप्राइज या एडमिरेशन की बात करें। An ambassador is a man who lies abroad. Ambassador हमेशा दूसरे देश में रहता है। इंडिया का एम्बेसडर विभिन्न कंट्रीज में, इंडिया का जो एम्बेसडर होगा वो डिफरेंट कंट्रीज में रहेगा। Why? For the good of his country. अपने देश से बाहर रहकर अपने देश का भला करता है, उसकी अच्छाई के लिए वहां रहता है। An ambassador is a man who lies abroad for the good of his country. Next is he kept his spirits up. उसने अपने स्पिरिट्स को अप रखा by pouring spirits down. यहां पर इस वर्ड को हमने पन के रूप में यूज किया है। He kept his spirits up by pouring spirits down. This is known as pun, a figure of speech. We have discussed a number of figures of speech. Almost 20 poetic literary devices have been discussed by me in the 3 videos. You have to watch all the 3 videos
based on figures of speech, part 1, part 2, and part 3, and note down all the examples and all the definitions of different figures of speech and have a great mastery over the usage of figures of speech. Thank you very much.